बेसिकली अगर हम सिंथेसिस की बात करते हैं, देयर इज नंबर ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज मेथोडोलॉजीज करंटली अवेलेबल इन अ होल वर्ल्ड, और हम इन मेथोडोलॉजीज को हम डिफरेंशिएट या क्लासिफाई करते हैं इन थ्री मेन कैटेगरीज. वन, द फर्स्ट इज अ फिजिकल, second is the chemical, and the third category is biological. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल मेथड्स को मैं अगर बात करूं तो फिजिकल मेथड्स आर there's a number of methods, but most reportedly and commonly used methods जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं that are reported in our published literature is the high energy ball milling process. ठीक है, high energy ball milling process or ball milling method. Number one, स्पेस कम है इसलिए आगे आप समझ लें, इट्स अ मेथड. ओके, द नंबर टू इज, हम 5 to 6 मेथड्स की बात करेंगे. ठीक है, ओके. नंबर टू, देयर इज वेपर डेपोजिशन मेथड. वेपर डेपोजिशन मेथड्स, वेपर डेपोजिशन टेक्निक्स, इट माइट बी अ पल्स. ये दो तरह की हो सकती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ पल्सेस और आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ कंटिन्यूअस, कि वो वेपर जो डेपोजिट हो रहे हैं वो पल्सेस की फॉर्म में हो रहे हैं या कंटिन्यूअसली डिपॉजिट हो रहे हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई इसको मैंने दो डिफरेंट कैटेगरीज में आगे क्लासिफाई कर दिया, पल्स और कंटिन्यूअस. ओके, number third methodology is again a laser based technique for the synthesis of a nanomaterial, and it is known as a laser pyrolysis. Okay, number four अगर हम बात करें तो it is known as again it's type of electron beam, use of electron beams and spray of these beam. इसको हम flash spray मेथड कहते हैं, फ्लैश स्प्रे pyrolysis, laser pyrolysis, and the other is a flash spray pyrolysis. Number 5 is the very well known process is known as electro spinning, और yes spinning भी है एक टेक्नोलॉजी, इसको मैं सेपरेट लिख लूँ, electro spinning, and the other is electro spraying. ठीक है, electro spray and electro spin almost same है with the fine modification. Okay, last is melt mixing process. ठीक है, melt mixing methodology. तो physical process की बात की जाए, as a name indicate that there's a need of some physical energy, there's need of some physical force. So all these type of physical method for the synthesis of a nanomaterials, ये they required a physical input. ठीक है, वो आपके पास physical input in the form of a mechanical pressure भी हो सकती है, वो high energy radiations भी हो सकती हैं, वो थर्मल एनर्जीज भी हो सकती हैं, इट माइट बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अ मैग्नेटिक फील्ड. इट मींस दैट देयर इज अ डिफरेंट फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, और वो जो डिफरेंट फोर्सेस हैं बाय द यूज ऑफ दीज अगेन टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच के प्रोसेस को यूज करते हुए वो अपने डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई अगर मैं इस फिजिकल फोर्सेस की बात अगर कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा physical methods में there is need to have some mechanical input. mechanical input में we have pressure, mechanical pressure हो सकता है, it might be temperature, it might be वो आपके पास जैसे मैंने कहा कि हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, clear, and same there's a number of different stuff that are required. It means that the physical method for nanoparticle productions are quite expensive. It required expensive and sophisticated equipments,
इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मींस दैट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम फिजिकल फोर्स। ठीक है, तो आई थिंक कि बेसिक जो कंसेप्ट है बिहाइंड वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्लियर? तो इट मींस दैट दीज आर डिफरेंट फोर्सेस। ये जितनी भी हमारी डिफरेंट फोर्सेस हैं, वी कैन यूज दीज डिफरेंट फोर्सेस फॉर the term is known as the material aberration. These physical forces are required for a material aberration. Aberration is a term used for shaping, कि हम उस मटेरियल को कैसे शेप देते हैं. These physical forces are required for melting processes. These are required for condensation processes as well as evaporation processes. ठीक है, तो इस physical forces की requirement क्या है? ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये different these physical forces are involved for sometimes there is a need to melt a material, condense, sometimes there is need to evaporate. ठीक है, तो उसको इस फॉर्म में लेके आते हैं एंड देन जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है उसको आइदर बाय यूजिंग अ बॉटम अप, इसको मैं सिंपली बता रहा हूँ, ये जो ऊपर कर रहा हूँ ये बॉटम अप अप्रोच, और आइदर बाय यूजिंग अ टॉप डाउन मेथड. इन मेथडोलॉजी को यूज करके हम फाइनल नैनो मटेरियल्स को, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट जस्ट द नेम. मैं टेक्निक्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इस पे एक कंप्लीट नैनो बायोटेक्नोलॉजी का अगर कोर्स होगा तो फिर ही एक्सप्लेन हम कर पाएंगे. अदरवाइज एक हाई एनर्जी बॉल मिलिंग पे जाएं तो टेक मोर देन 2 आवर्स टू डिफाइन दिस होल प्रोसेस. ठीक हो गया? ओके, तो इन द सेम वे आगे हम बात करेंगे केमिकल बेस्ड मेथड्स की. ओके बेटा, केमिकल फोर्सेस, केमिकल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो अगेन दे आर टू बेसिक, टॉप अप और बॉटम, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप की बात होती है तो सेल्फ असेंबली, इन्हीं प्रोसेस को यूज करके इन तमाम प्रोसेस को, इन तमाम जो डिजायर्ड फंक्शन उसको अचीव किया जा सकता है. ओके, number one, a very famous process, people that have interest in the background of chemistry, so they are well aware about this process is a sol gel synthesis. ठीक है, तो फर्स्ट टेक्निक इज अ सोल जेल सिंथेसिस. सेकंड में अगर बात करता हूँ तो इज अ माइक्रो इमल्जन टेक्निक. ठीक है, माइक्रो इमल्जन प्रोसेस, माइक्रो इमल्जन टेक्निक. ओके, थर्ड प्रोसेस जो कि यूज होता है इज अ हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस in the chemistry labs or chemical process, that is hydrothermal synthesis. The fourth process is a polyol method or a polyol synthesis. Clear? And at the end और सेकंड लास्ट हम डिस्कस करते हैं, अगेन इट्स अ वेपर बेस, इसको हम केमिकल वेपर सिंथेसिस कहते हैं, एज अ केमिकल वेपर synthesis. And the last but not least we are just discussing some important processes जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, is plasma enhanced chemical vapor deposition. ठीक है, तो these are a few processes that are used rapidly and frequently throughout the world based on their chemical processes for the synthesis of nanomaterials. ठीक है, तो हम डिटेल में तो भी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको इन प्रोसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है. ठीक है, ओके, तो इसमें अगर मैं स्पेशली इन दो प्रोसेस की बात करूं, आई हाईलाइटेड देम इन अ ग्रीन कलर. वन दिस प्रोसेस एंड द अदर इज अ माइक्रो. ये दोनों प्रोसेस दे आर लो एनर्जी कंजप्शन. फिजिकल की बात की थी हमने, ऑल फिजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसमें लाइट भी चाहिए, आपको हीट भी चाहिए, रेडिएशंस भी चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए बहुत इनपुट अगर ज्यादा होगी तो आपका फाइनल प्रोडक्ट वो भी बहुत एक्सपेंसिव होगा. तो इसकी मैं दोनों की बात करूँ, ये लो एनर्जी है. बट इन द केस ऑफ दिस हाइड्रोथर्मल, एज अ नेम इंडिकेट दैट, इसको मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूँ कि हाइड्रोथर्मल की अगर मैं बात करूं, ये हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है. ठीक है, हाई एनर्जी एंड हाई एनर्जी.
ठीक है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी की वजह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। क्लियर? तो सोल जेल, अगेन सोल इज अ सॉल्युबल कोलाइड्स होते हैं, जेल इज अ जेल फेज होता है, उनको मिक्स किया जाता है। तो सोल जेल प्रोसेस को आई होप कि हम नेक्स्ट में थोड़ा सा डिस्कस में कर लूंगा विद इन अ फ्यू मिनट्स कि ये कौन से प्रोसेस है। ओके, तो एट द एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट पोर्शन, जो कि हमारा क्या था, इज बायोलॉजिकल फेज। इसकी हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन से हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। और कुछ आपकी कंफ्यूजन भी इसमें क्लियर हो जाएगी कि जैसे हम कहा कि ये बहुत से हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बायोलॉजिकल मेथोडोलॉजी को देखा जाए, बायोलॉजिकल मेथड्स को देखा जाए, दैट इज बायोलॉजिकल, तो वन थिंग दैट इज नीड टू क्लेरिफाई कि अगर हम अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं एंड व्हेन वी लुक अपॉन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है। अगेन देयर आर वेरी स्मॉल नैनो मशीन्स जो कि नेचुरल नैनो मशीन्स हैं उन प्लांट्स के अंदर हैं, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही होती है। इट मीन्स दैट कि अगेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू मिमिक, वी आर ट्राइंग टू कॉपी द नेचर। ठीक है, हाँ, वही हम उस परफेक्शन पे अभी तक नहीं पहुंचे, वी आर ऑन द वे टुवर्ड्स द मोर एडवांसमेंट। और टाइम के साथ साथ जो ऑब्जेक्शंस, जो लिमिटेशंस आ रही है नैनो पार्टिकल्स की, वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, बट द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इज दैट as compared to a physical method or as compared to a chemical method, both required a high amount of energy, high amount of investment, high amount of radiations। लेकिन अगर बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो माइक्रोब्स को भी यूज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई बायोलॉजिकल सिस्टम को मैं जल्दी से डिस्कस करता हूँ। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 मेन कैटेगरीज। नंबर 1 मैं इसे कह रहा हूँ, दैट इज माइक्रोब assisted biogenesis। So this is the beauty of a biology, a process that take hundreds of years we can complete by using natural machines, natural created by a god। ठीक है, उन machines को हम use करके हम energy production, material synthesis को भी desired particle produce कर सकते हैं। ठीक है, और the second technique is biotemplate assisted biogenesis, and the last is very important, is plant extract assisted biogenesis। ठीक है, तो in short, when we discuss about these biological methods, so surprisingly these biological methods are very environmental friendly। Suppose that हम किस तरह मिमिक करते हैं, as you know that कि only nature में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कर सकते हैं। प्लांट्स हैव only single way to use nitrogen because they have a enzyme, और उस एंजाइम का नाम क्या है, I think it's a nitrogenase, and that have a ability to trap an एरियल नाइट्रोजन। एरियल नाइट्रोजन को वो ट्रैप करता है ये ना बैक्टीरिया, और फिर क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को ट्रैप करेगा एंड देन इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू अ यूजेबल फॉर्म। ठीक है, इट मींस दैट कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इट्स अ माइक्रोब। नाइट्रोजनेस ये एंजाइम है, ये और एंजाइम एक माइक्रोब में है। ठीक है, सपोज दैट मैं एक माइक्रोब में बना रहा हूँ एज अ होल। Sorry, it means that we can use a microbe, एक microbe है, and within a microbe there is an enzyme, and this enzyme, this protein or enzyme is able to synthesize a product। ठीक है, by taking some raw material। कहाँ से raw material ले रहा है, from the environment, and then convert into this raw material after processing into the product और बाय प्रोडक्ट। और ये जो फिर प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को हम फिर आगे क्या करते हैं, देयर इज सम प्रोसेसेस जिसको हम क्या कहते हैं, दीज प्रोसेस आर नोन एज अ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग।
डाउनस्ट्रीम तो ये इंडस्ट्री में यूज होता है। जब इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आप डाउनस्ट्रीमिंग, तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट, उसको हम प्यूरिफाई करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस प्रोडक्ट में से अपना रिक्वायर्ड कंपाउंड को निकालेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, दैट वो मटेरियल भी हो सकता है, वो आपके हर्बल प्रोडक्ट्स, वो मेडिसिन, ड्रग्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली जो आइडिया मैं आप लोगों से भी डिस्कस कर रहा हूँ कि हम इन मेथडोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट इज अ माइक्रोब असिस्टेड। ठीक है, कि माइक्रोब असिस्टेड में हमारे पास क्या है, माइक्रोब्स हैं। वो माइक्रोब्स हमारे पास बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, दे माइट बी फंजाई, देर माइट बी एल्गी, इकोलाई, ईस्ट, एक्टिनोमाइसिट्स। क्लियर? तो अगेन माइक्रोब असिस्टेड अप्रोच की अगर हम बात करेंगे, इट माइट बी अ बैक्टीरिया, it might be fungi are mostly used for this type of process for the synthesis of nanomaterials. E. coli को हम यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे मैंने बात की थी, आई थिंक यीस्ट के बारे में बोला था, यीस्ट को हम यूज कर सकते हैं, फंजाई को यूज कर सकते हैं, एक्टिनोमाइसिट्स। So these are different type of microbes. So with the help of a microbe, when we try to synthesize, when we try to design our materials, so that is known as a microbe assisted biogenesis. जैसे मैंने अभी एक, it means that के these are small or tiny bioreactors. तो by nature we are trying to utilize the powers of a nature, कि बैक्टीरियाज को, फंजाई को एज अ बायोरिएक्टर यूज किया, उन बायोरिएक्टर्स को यूज करके वी ट्राई टू प्रोड्यूस, वी ट्राई टू सिंथेसाइज अ मटेरियल, और वो जो मटेरियल्स हम बना रहे हैं वो हमारे पास क्या है, दैट आर नैनो मटेरियल्स। तो दिस इज सिंपल स्टोरी, इसमें हम यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दीज आर नंबर ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स, हमारे इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स हैं, एंड दीज माइक्रोब्स हैज एबिलिटी टू ग्रैब different targeted ions from the environment. For example, वो ions क्या हैं, वो metallic ions हैं, और उसको फिर via enzymatic and via cellular activities उनको वो क्या कर रहे हैं, वो convert कर रहे हैं in different type of products. ठीक है, suppose that बेटा, इसी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, it's one technical thing, कि मैंने कहा कि there are some microbes. Suppose that कि ये एक microbe है, microbes, अब microbes ने basically क्या किया, grab some in मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से कोई भी मटेरियल उसने ग्रैब किया, माइक्रोब्स हैज एबिलिटी, वो मटेरियल्स क्या हैं, वो आइंस हो सकते हैं, मेटालिक आइंस हो सकते हैं। सपोज दैट मैं सिंपली यहाँ कह रहा हूँ, ए ग्रैब सम आइंस, इट्स मेटालिक आइंस, और उसको फिर उसने क्या किया, टर्न इनटू, ये सिंपल आइन को उसने लिया और उसको प्रोसेस किया, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग टर्न इनटू metallic ions via cellular activities, via the use of these enzymatic activities or its or ओके। अब सिंपली जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाय यूज ऑफ दिस माइक्रोब असिस्टेड, यहाँ पे मैंने बात की माइक्रोब असिस्टेड, लास्ट 5 मिनट्स हैं। माइक्रोब असिस्टेड बायोजेनेसिस दो तरह की हो सकती है, इट माइट बी टू डिफरेंट टाइप्स, वन इज इंट्रासेलुलर एंड द अदर इज एक्स्ट्रासेलुलर सिंथेसिस ऑफ द नैनो मटेरियल बाय द यूज ऑफ माइक्रोब्स। अब यहाँ पे देखें कि आइंस सेल्स के अंदर चले गए, दैट इज माइक्रोब्स के सेल्स के अंदर चला गया, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रासेलुलर सिंथेसिस विद इन अ माइक्रोबियल सेल्स, हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इंट्रासेलुलर सिंथेसिस है हमारे पास। ओके, एक्स्ट्रासेलुलर सिंथेसिस क्या हो सकती है बेटा, देखिए इन द सेम वे, नॉट इन दिस वे, वी हैव अ microbe, but we know that microbes have a different type of a protein their surface. ठीक है, suppose that कि microbe के surface पे एक ये protein है, it have a different type of a proteins and third different type of a proteins, protein, and we know that the enzymes are proteins in nature. और अब इसमें क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिंथेसिस की एग्जांपल दे रहा हूँ कि इट ग्रैब सम मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से मटेरियल आया यहाँ पे किसके पास, एक्स्ट्रा सेलुलर component of a microbe,
और उस प्रोटीन ने इसको सिंथेसाइज किया, उसको प्रोसेस किया, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट, और इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, because this raw material is not totally moved within a cytoplasm or within a cell. It is totally processed by some protein or a group of a protein or assembly of a proteins or the outer layer of a microbe, और उसने इसको प्रोसेस किया, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर, we call it extra cellular synthesis by using microbes. Clear? So in both case there is an involvement of a microbe, that's why there is a microbe assisted biogenesis of a nanomaterials. Okay, the second thing is a template based or a biotemplate assisted biogenesis. Okay, template हमारे पास क्या हो सकती है? In as a student of biology, जब भी हम template का जिक्र करते हैं, the very first thing that comes in our mind is DNA. It means that ये जो template है, ये DNA भी हो सकती है, it might be a N acid, that is a nucleic acid, especially DNA as well as a RNA, हम इसको use कर सकते हैं. Template, it might be a biolipid membranes, it might be one of the very important thing, that is a diatoms. जी डायटम्स क्या होते हैं? इट्स बेसिकली, इसके बारे में बेटा लाजमी देख लेना, इट्स वेरी ब्यूटी, दैट इज अ सेलिका मेम्ब्रेन. सेलिका सेल मेम्ब्रेन्स हैं ऑफ सम माइक्रोब्स, जो कि 1 or 2 एटम्स की माइक्रोब्स हैं, एलजी स्पेशली होते हैं, और उनकी जो एक क्रिस्टल लाइक एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ सेलिका सेल मेम्ब्रेन. ओके बेटा, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैंने कहा डाई एटम्स को हम यूज कर सकते हैं. इसको आप देखें, वन ऑफ द वेरी न्यू फील्ड जिसको यूज किया जा रहा है एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस, ठीक है. एंड द लास्ट इज द प्लांट एक्सट्रैक्ट. इट मीन्स दैट कि आपने प्लांट्स लिए और प्लांट्स के लीव्स हैं या रूट्स हैं दैट आर रिपोर्टेड टू हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स, हमने उसको बाय द यूज ऑफ अ बॉइलिंग मेथड और बाय द यूज ऑफ सम अदर असिस्टेड मेथड्स हमने प्लांट के मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया, एंड देन उसको बॉयल किया, एंड आफ्टर बॉइलिंग उस मटेरियल को हमने क्या किया? एवेपोरेट किया, कंडेंस किया. आफ्टर कंडेंसेशन all these materials are extracted, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा, दैट इज प्लांट असिस्टेड बायोजेनेसिस, ठीक है. और उन एक्सट्रैक्ट्स को, उन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को फिर हम आगे यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल्स, और इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट्स, जो कि आपके नैनो ड्रग्स भी हो सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज इंक्लूडिंग कैंसर थेरेपी एंड डिफरेंट अप्रोचेस. तो सिंपली अगर हम प्लांट एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इज वन ऑफ द क्लीन मेथड, इकोनॉमिकल फ्रेंडली मेथड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. इट यूटिलाइज बाय सिंपली यूटिलाइजिंग द पावर्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, बाय द पावर ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज और एंजाइम्स की पावर्स को यूज करके वी आर एबल टू सिंथेसाइज आवर बायोमटेरियल्स, ठीक है. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कोई इसमें समझ नहीं आई चीज, तो यू कैन आस्क. जी सर, मैंने ना आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में ही डिस्कस करना था कि जब आप रिसर्च में बात करते हैं हम अपना रिसर्च इंटरेस्ट इसमें रख सकते हैं. तो लाइक सियालकोट में जो फुटबॉल टेलस्टार लास्ट ईयर जो फीफा वर्ल्ड कप में यूज हुआ था, उसमें उन्होंने चिप टेक्नोलॉजी यूज की थी फील्ड कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें जो प्लेयर था वो अपना वो जो प्लेयर के पास प्रैक्टिस के लिए एक बॉल होता था, तो उस बॉल से जो है ना, फुटबॉल से वो अपना जो है ना उसकी स्पीड में वो उस बॉल को, उस फुटबॉल के ना एक चिप होती थी, तो वो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स में ही उन्होंने ये चिप इंट्रोड्यूस करवाई थी. तो उस बॉल में जो है ना अटैच थे, ताकि प्लेयर ना अपना कम्युनिकेशन अपने बॉल के साथ रख सके कि किस स्पीड से उसने और वो बॉल को
किस स्पीड से किक कर रहा है। तो हिट उसमें कर जो रहा है है, ना उसके ठीक है। स्मार्टफोन के साथ वो एप्लीकेशन कनेक्ट थी, तो जिसमें से उसको पता चल जाता था कि ये कितनी किक्स की हैं इसने, तो कितनी स्पीड से कर रहा है। तो लाइक हमारा एक इंडस्ट्रियल हब है ये हमारा सिटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो हम इसमें डिफरेंट फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज को विजिट करके या उनका होमवर्क करके, तो अभी जैसे फुटबॉल पे सिर्फ ये अगर काम किया गया तो मे भी किसी हाँ, और इट्स पे भी गुड हो आइडिया। सकता है हम अगर क्रिकेट के लिए बैट्स के साथ इस तरह की चिप करें तो बैट्समैन की टाइमिंग और उससे आइडिया होगा कि ये मिडिल कर रहा है या एज हो रहा है, ये बॉल आपकी कितनी अच्छी टाइमिंग चल रही है। जी जी बिल्कुल सर, क्योंकि वो चिप यस। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस थी, लेकिन उन्होंने इसको स्पोर्ट्स में किया कि इसमें इस तरह ही हम कोई चिप्स में बारे में पढ़ सकते हैं, तो ताकि देख सकते हैं कि हम इसको किस कैटेगरी में यूज कर हाँ, सकते इसी वजह से अब जितना हैं। भी यस सर। आपका मटेरियल्स आ रहा है ना, तो ये स्मार्ट मटेरियल डिजाइनिंग जो है, स्मार्ट मटेरियल डिजाइनिंग ये सारी यही चीज है कि हम जब कोई ऐसा मटेरियल, वो लेदर भी हो सकती है, वो आपका टेक्सटाइल का हो सकता है, वो आप मटेरियल मींस दैट वो आपकी कैप्सूल की आउटर को, आपके ड्रग्स की आउटर कवर भी हो सकता है। ठीक है। तो स्मार्ट मटेरियल डिजाइनिंग इज द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड, कि हर चीज को स्मार्टली, कि वो आपकी बॉडी टेम्परेचर, आपका हर चीज वो आपको बता रहा है। जैसे हम क्रिकेट की बात की या फुटबॉल की, कि वो किक की स्पीड और एक्यूरेसी, प्लेयर किस तरीके से उसको, ठीक है, किस जगह पे हिट किया। जी बेटा हमजा, और कुछ? तो इस क्योंकि पे सर इसका कोश मेन ये है कि ये हमारे सियालकोट से ही ये चीज इंट्रोड्यूस की गई है, तो हम्म। इसका मतलब है कि इस चीज का हमें अमेरिका या मतलब यूरोप की तरफ नहीं हमेशा नजर करनी चाहिए। हम देखें कि हमारे सिटी ने इंट्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब कि हम लोगों में से चीज गई है, तो हम लोग कर सकते हैं इस पे मजीद काम भी कर सकते हैं। तो यस। बस ये था कि मेरा कि हम इस पे। जी सिंपली जी। मेन पर्पस यही है कि आप जितना ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर होंगे, आपके ब्रेन में उतना कुछ ना कुछ करने का करेगा दिल कि यार मुझे ये काम आता है, मैं कुछ अलग से करूं। रिसर्च इज ऑल अबाउट कि आपके टीचर ने आपको एक मेथड बताया है, आप एक टीचर वाला मेथड लगाओ, एक अपना लगाओ चोरी छुपे। ठीक है। जब तक आप यस अपने सर। माइंड को यूज नहीं करते, आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप इनोवेशन नहीं कर सकते।